morning to all of you. This is chapter number 6, Lines and Angles. Previously, we have discussed this chapter in earlier classes. Like 6 में भी हम लोगों ने lines and angles के बारे में किया है, 7th भी किया है, 8th में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में हम किया है, angles वगैरह. First, we will discuss about this introduction of the chapter, then angles in our daily life, basic terms and definitions related to this chapter. Points definition, intersecting line, non-intersecting line, perpendicular line, angles, parallel lines, and a transversal. Let's continue. First, in the mathematics, geometry of the lines and angles are important tools. हम लोग के पास जो geometry है, that is Euclidean geometry. इससे पहले जो हमने chapter किया था, that is Euclidean geometry, जिसमें basic definitions जो हम लोगों को दी गई थी. Euclid is called father of geometry. जो Euclid हमें definitions दिए थे, वो हमारे फंडामेंटल डेफिनेशंस थे. उनको थोड़ा सा एडिट करके हमारे पास अब न्यू डेफिनेशंस आ चुके हैं. इफ एनी ऑब्जेक्ट इन आइडियल दैट इज कॉल्ड अ लाइन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट कर्व. कर्व दैट इज स्मूथ लाइन, जिसमें आप पेंसिल नहीं उठाते और एकदम स्ट्रेट आप बना दो किसी चीज को कि उसमें कहीं भी एंगल ना बने. ऐसा एक कर्व जो बिल्कुल स्ट्रेट हो, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन. उसको लाइन बोला गया था. तो ये बेसिक डेफिनेशंस थे सारे, जबकि यूक्लिडियन डेफिनेशन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दिस. The angles is related with the line that the cross section of two lines is create an angle. The intersection point is called as vertex. See we about types of angles and lines in maths. तो हम लोग पास जो angles है हमने उसको पढ़ रखा है कि when two ray originate from the same point. जब दो रे एक पॉइंट से ही जनरेट होती हैं तो उनके बीच का जो हमारे पास एरिया होता है, swept area by both the rays, is called angle. Angle is our daily life. If we look around us, we see different types of objects. जो आपके जैसे सीजर है, पेयर ऑफ सीजर के बीच में जो आपका बन रहा है, दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स आप बना सकते हैं. ऑब्ट्यूज से लेकर के राइट और एक्यूट सब बनेगा आपके पास. एरोप्लेन जो है उसमें आपके मल्टीपल्स एंगल्स हैं. कहीं ये देखिए पीछे की साइड पे एंगल बन रहा है, इधर एंगल बन रहे हैं, ये ऑब्ट्यूज एंगल के क्राइटेरिया में है. या फिश टीथ के एग्जाम्पल समझाया गया है. First definition, the line. A straight path extending on both the direction with no endpoint. We already know if line has no endpoints, it can be extended on both the direction. That is Euclid postulate था हमारे पास कि line जो होती है दो straight points से होकर के जाती है, लेकिन उसको कोई end points नहीं होते हैं. दो points से होकर के एक ही line जाएगी. The line segment, this is a part of the line. It has two endpoints. ये हमेशा एक line का part होता है, इसके दो endpoint होते हैं. It is represented by a bar. Line is always represented by a small letters. Line segment is represented by a capital letters. Point, because point जो होता है वो capital letters होता है, तो आप capital A, capital B. Suppose 2 points are here, that is capital A and capital B. तो A, B bar से represent होगा. Ray, a part of a line with one end point. Ray हम लोग पास क्या होता है, जब एक origin fix कर दें और दूसरा line का हम end क्या कर दें, उसको free कर दें, वो जो आपके पास बनेगा, that is called ray. That continues without end in one direction. और ये जो ओपन एंड होगा ये कहीं भी आगे इनफाइनाइट तक जा सकता है. लाइक हम लोग बोलते हैं रेज ऑफ सन. तो रेज ऑफ सन का भी यही मतलब है कि सन की रेज है, यानी सन हमारे पास क्या है, फिक्स एंड पॉइंट है और उससे मल्टीपल डायरेक्शंस में और मल्टीपल लेंथ में जो होती है वो रेज आगे तक प्रोड्यूस हो सकती है. नेक्स्ट डेफिनेशन, पॉइंट. पॉइंट एन एग्जैक्ट point or location. Point always denote the location of any object. इसके बारे में हम लोगों ने यूक्लिडियन ज्योमेट्री में भी कहता है. पॉइंट क्या होता है, ब्रेथलेस एंड आपके पास पॉइंट होता है, इसे फुल स्टॉप या डॉट से आप रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट, मूव टू इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस. इंटरसेक्टिंग लाइंस, टू लाइंस, always two lines are said to be intersecting if they meet each other at single point or they intersect each other at single point. This point is called point of intersection. जो दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, जहां दोनों लाइन कट कर रही हैं, ये पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, द लाइंस व्हिच नेवर क्रॉस, या आपस में एक दूसरे को कभी कट ना करें, नेवर इंटरसेक्ट आप वर्ड यूज कर सकते हैं. नेवर क्रॉस की जगह नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, और वी कॉल्ड इट पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट उन्होंने किए हुए यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट में भी किया था. नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस ये आपके पास है हार्डवुड फ्लोर, अपोजिट साइड्स ऑफ विंडो, डेस्क एक्सेट्रा. ये आप देख सकते हैं कि आपके दो कोई पार्किंग स्लॉट में आपके गाड़ियां पार्क हैं, पैरेलल पार्किंग जो है, these are the examples of non intersecting lines or parallel lines.
परपेंडिकुलर लाइंस, इफ वो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसको किया है, इफ टू लाइंस एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री से इंक्लाइन करते हो तो दीज आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। ये हमेशा किसी भी कार्टेशियन प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करते थे, 4 पार्ट्स में। तो टू लाइन दैट इंटरसेक्ट टू फॉर्म 4 राइट एंगल्स, हर पार्ट इसके बीच में, दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 देन दीज लाइंस आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। मोर एग्जाम्पल्स ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन, अपने आप स्ट्रीट का कोई प्लान देख लीजिए, अपने घर का प्लान देख लीजिए, अपने रोड मैप, कहीं भी क्लासरूम का प्लान देख लीजिए, स्कूल मैप प्लान देख लीजिए, तो आपको जहां कहीं भी जंक्शन मिलेगा वहां से आपको दो रास्ते जैसे बनते हैं आपके पार्किंग एरिया से या स्कूल के फ्रंट डोर से या आपके मेन एंट्रेंस पे या क्लासरूम के गेट से दूसरे क्लासरूम के लिए बाहर आप जाते हैं, तो ये ईच एंगल इज 90 डिग्री। नेक्स्ट कम टू द टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स आपके पास था व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम पॉइंट, जब दो रे जो होती हैं एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होती हैं तो उनके बीच का जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एंगल। एन एंगल हैज 3 कंपोनेंट्स। एंगल के पास कितने कंपोनेंट होते हैं, 3, 1 वर्टेक्स एंड 2 आर्म्स। सब बच्चे जानते हैं कि 2 आर्म्स से ही एंगल बनते हैं, और एक जो कॉमन वर्टेक्स है दोनों का वो क्या कहलाता है, जो कॉमन पॉइंट था वो क्या कहलाता है, वर्टेक्स। तो एंगल के पास 3 कंपोनेंट होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस मेजरमेंट, तो हम लोग एंगल को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स, एडजेसेंट, लीनियर पेयर एंड व्हाट द अपोजिट एंगल्स। फर्स्ट, acute angle, an angle whose measure lies between 0 and 90 degree। 0 to 90 डिग्री के बीच में जितने भी एंगल होते हैं these are called acute। acute वो मेजरमेंट जो लेस देन 90 डिग्री हो और मोर देन 0 डिग्री हो। यहाँ जितने भी एंगल्स बने हैं आपके पास 89.1 डिग्री, 89.9 डिग्री का एंगल भी जो होगा दैट इज कॉल्ड acute angle बिकॉज इट इज नॉट कंप्लीट 90। acute angle के एग्जांपल्स हैं। Next definition is right angle. If the measurement of an angle is exactly 90 degree, अगर दो परपेंडिकुलर लाइंस हमने बोली थी तो उनके बीच में आपका कितना बनता था, 90 डिग्री, तो आपका डेफिनेशन होगा if the measure of two angles, measure of an angle is exactly 90 degree, it is called right angle. नेक्स्ट डेफिनेशन आ चाहिए इसमें राइट एंगल के एग्जांपल्स हैं, जैसे 3 o'clock आपका वॉल घड़ी में हो रहा है, ये आपके पास राइट एंगल है। दरवाजा आपका है, दो वॉल्स आपस में एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, किसी भी मोड़ कमरे के आप किसी भी कॉर्नर को ले लीजिए तो वहां पे आपको एंगल मिल जाएगा 90 डिग्री। देन आफ्टर ऑब्ट्यूस एंगल, एन एंगल whose measure is more than 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री is called obtuse angle। ऑब्ट्यूस एंगल जो होगा वो आपका 90 से बड़ा होता है और 180 से क्या होता है, छोटा होता है। ये ऑब्ट्यूस एंगल के कुछ एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेट। इफ एन एंगल हैज मेजर एग्जैक्टली 180 डिग्री, अगर एंगल का मेजर कितना हो जाए 180 डिग्री, इसमें आर्म्स कैसे हो जाएंगी, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगी टू द वर्टेक्स और रिप्रेजेंट करेंगी बाय अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक आधा चक्कर आर्म। और एंगल्स के लिए हम लोग एक बात हमेशा याद रखेंगे, एंगल जो होता है उनका मेजरमेंट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लेते हैं। एंड यहाँ पे जो आर्क लगाते हैं उनका रोटेशन अगर आप सब जगह पे देखेंगे तो दीज आर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो हमारे पास एंगल होता है वो पॉजिटिव होता है। ऐसे ही हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किया था, पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट था, देन आफ्टर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, हम इसको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज इसलिए क्योंकि एंगल कैसा रहेगा हमारे पास, पॉजिटिव। नेक्स्ट, स्ट्रेट लाइन के बहुत सारे एग्जाम्पल है, आपका रूलर जो है वो स्ट्रेट लाइन का एग्जाम्पल है। रिफ्लेक्स एंगल दैट इज एंगल more than 180 but less than 360 degree is called reflex angle। नेक्स्ट जो इसके बाद आता है वो दैट इज कंप्लीट एंगल whose measure is exactly 360 degree। one figure is missing here, that is complete angle। complete angle has measured 360 degree, exactly measured 360 degree। now come to the definition of adjacent angle। adjacent angle हमारे पास क्या होता है, दो ऐसे एंगल जिनके कॉमन वर्टेक्स हो और दो आर्म्स, जैसे हम यहाँ पे हम फिगर में देख सकते हैं कि दो एंगल बने हैं, एक एंगल है एबीसी और एक एंगल है सीबीडी। दोनों एंगल में वर्टेक्स क्या है, बी कॉमन है और दोनों एंगल की एक आर्म कॉमन हो, तो दो चीज हम बताएंगे, क्या कि टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म। I repeat my line, two angles are said to be adjacent if they have common vertex and a common arm। In our figure the common vertex is B and the common arm is BC। ये एंगल आपका जरूरी नहीं कि दोनों एंगल एक्यूट भी हो सकते हैं, दोनों राइट भी हो सकते हैं, दोनों आपके पास ऑब्ट्यूस एंगल भी हो सकते हैं।
लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के लिए सबसे नेसेसरी टर्म जो है वो एंगल्स को एडजेसेंट होना है, ठीक है। और लीनियर पेयर हमेशा दो ही एंगल होंगे, तीन एंगल जो होंगे वो स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी से होते हैं। अगर हम बात करें कि तीन एंगल जो एक ही लाइन के ऊपर बने हैं तो वहां पे स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी लगाते हैं, ना कि लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब है केवल दो एंगल्स के बारे में बात की जा रही है। टू एंगल्स आर सेड टू बी इन लीनियर पेयर if the sum of adjacent angle is 180 डिग्री। अगर दो एंगल लीनियर पेयर में हैं तो उन एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो ऐसे दो एंगल जिनका सम दोनों एडजेसेंट होने चाहिए, यानी कि एक वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए और एक आर्म कॉमन होनी चाहिए, तो ऐसे एंगल्स का मेजर कितना होता है, दोनों का सम करेंगे तो 180 डिग्री। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, नाम से ही लग रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसमें एक कॉमन वर्टेक्स होगा। कभी भी आपकी दो लाइंस होंगी तो एक दूसरे को जब कट करेंगी तो आपके पास टू पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल फ्रेम होता है। एक पेयर जो होता है एक्यूट होता है और दूसरा पेयर जो होता है वो कैसा होता है, ऑब्ट्यूज होता है। अगर हम यहाँ पे ध्यान दें इस फिगर पे, ये वाले जो पेयर हैं ये वाले, ये आपस में इक्वल होंगे। ये कैसे है, एक्यूट। अगर एक पेयर एक्यूट है तो दूसरा पेयर हमेशा कैसा होगा, ऑब्ट्यूज। ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट each other, if two lines intersect each other in such a way then vertically opposite angles are framed, then दोनों का मेजर क्या होना है, आपस में इक्वल आने वाला है। मेजर ऑफ this type of angle are equal to each other। पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल्स, पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल, हम लोगों ने पैरेलल लाइन का कंसेप्ट किया है। पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो आपके बीच में, दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस क्या होती है, सेम बनी रहती है। ये सारे डेफिनेशन जो है ये एडिट किए हुए हैं आपके पास। जो यूक्लिड फिफ्थ वाले में डेफिनेशन उन्होंने किया था कि इफ टू लाइंस जो हैं उनके ऊपर कोई एक स्ट्रेट लाइन फॉल करती है और एक ही साइड के को इंटीरियर एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री होता है तो वो लाइन आपस में कैसे कहलाते हैं, पैरेलल कहलाते हैं। जो फिफ्थ पोस्टुलेट से आपने पैरेलल लाइन की कंडीशन निकाली थी वही आपको यहाँ पे मार्क करनी है। अब पैरेलल लाइन है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये हम लोगों को पहले से भी पता है कैसे कैसे होता है। ट्रांसवर्सल क्या होता है, ट्रांसवर्सल के साथ कभी भी लाइन वर्ड नहीं लगाते हैं। ट्रांसवर्सल के साथ कभी भी लाइन वर्ड नहीं लगाते बिकॉज ट्रांसवर्सल इटसेल्फ अ लाइन। ट्रांसवर्सल क्या होती है, जब दो या दो से ज्यादा लाइनों को कोई इस तरह की लाइन जो एक तीनों दोनों लाइन को एक साथ कट करे, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होगी, दो या दो से ज्यादा लाइंस को, वो लाइन जो तीनों लाइन, दो अगर दो लाइन ले रहे तो दोनों को कट करे, तीन लाइन ले रहे तीन को कट करे, चार लाइन ले रहे तो चारों को कट करे। जितने भी आप लाइन ले रहे हैं, मोर देन टू लाइंस को जब कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है एक ही प्लेन में, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। ओके, पैरेलल लाइन की कंसेप्ट के लिए हमें ट्रांसवर्सल की हेल्प चाहिए होती है। अब हमने यहाँ पे कुछ फिगर में एंगल्स मार्क किए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह करके। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल की बात करो तो एंगल 4 और 7 करस्पॉन्डिंग है, 1 एंड 2 करस्पॉन्डिंग है, 5 एंड 8 करस्पॉन्डिंग है, 3 एंड 6 करस्पॉन्डिंग है। करस्पॉन्डिंग आपके एक ही साइड के ऊपर ऊपर वाले एंगल बनेंगे, ये वाला इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके इक्वल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये हमेशा जेड का शेप बनाते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जहां मिलेगा वहां आपके पास जेड होगा, आइदर रिवर्स साइड में जेड बने, दैट इज 8 एंगल जो होगा वो 2 का ऑल्टरनेट इंटीरियर है और 3 एंगल जो है वो 7 का ऑल्टरनेट इंटीरियर है। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बाहर बनने वाले एंगल हो गए। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल दैट इज 7 + 8 और 2 + 3, ये आपके पास हुए। ये देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हमेशा जेड शेप में ही मिलेंगे जैसे 5 और 6 और 7 और 8। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ये आपके पास ऊपर बने हुए हैं, देखिए मैंने बताया था ऑल्टरनेट ही होंगे। और एक्सटीरियर का मतलब ए जो होगा वो एच वाले के इक्वल है और इसी तरह से बी जो होगा वो जी के इक्वल। इस तरह से यहाँ वाले पेयर जो होंगे वो ये आपस में एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये देखिए